ओके बेटा. अब yesterday we discussed about the conditions necessary for photosynthesis, और in that case conditions necessary for photosynthesis हमने कहा that your sunlight is required, chlorophyll is required, carbon dioxide and water. फिर we discussed about the experiment also to show that your sunlight is necessary for the photosynthesis, and similarly we have the experiment to show that chlorophyll is also necessary for the photosynthesis. In both the experiment we use the iodine solution for the testing. Okay, now the main thing comes over here, that is the raw materials required for photosynthesis. Raw materials required for photosynthesis. Now the raw materials required for photosynthesis, we say the main two materials required for the photosynthesis is what? That is your carbon dioxide and the water. Now how do this carbon dioxide help the plants to how, or you can say how these plants are going to obtain the carbon dioxide, इन्हें carbon dioxide कैसे मिलती है? Yesterday I told you कि जितने भी leaves हो गए, आपका जो plants के leaves हो गए, उनका जो surface होता है, say suppose this is your leaf. Okay, now all the surface of the plant leaf, it is covered by the tiny pores, और उन tiny pores को आप क्या बोलते हो? That is called as the stomata. Now these stomata what they do कि जितने भी green plants होते हैं, they are going to take the carbon dioxide from air for the photosynthesis purpose. Now carbon dioxide gas जो है वो enter करती है in the leaf, and when they are going to enter into the leaf they enter through this stomata. वो stomata से enter करती है on present on the surface of the leaf. जितने भी स्टोमाटा पोर्स होते हैं वो फर्दर सराउंडेड होते हैं बाय द गार्ड सेल्स. इनका जो लुक होता है वो इस टाइप का होता है, लाइक दिस. ओके, अब ये क्या करते हैं दैट ये आपका जो हो गया लाइक दिस वाइडर पोर्शन, इसको हम बोलेंगे दैट ओवर हियर योर स्टोमाटा इज ओपन. और अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस टाइप का बना देती हूँ, then this structure is going to called as the closed stomata. Okay, now what is going to happen कि जितने भी ये stomatal pores या stomata होते हैं ये surrounded रहते हैं by the guard cells. लाइक ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तो स्टोमाटा हो गया, ये वाला जो पोर्शन है this is going to called as the guard cells. ओके, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमाटा की ये गवर्न होती है, और यू कैन से इट इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स. जैसे ही आप पानी का फ्लो होगा गार्ड सेल में तो वो स्वेलअप हो जाएंगे और वो कर्व शेप के हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पोर्स होंगे वो ओपन हो जाते हैं. और जैसे ही देयर विल बी द लॉस ऑफ वाटर दे विल श्रिंक और वो स्ट्रेट हो जाएंगे और स्टोमेटल पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे. मीन्स वी कैन से कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द प्लांट्स, जिससे आपका स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग होती है. अब जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती है तो क्या होता है कि उसको क्या, उसका जो पोर्स होते हैं स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं. ओके, like I show you over here the picture of the exactly picture of the stomatal pores.
कहाँ? यस तनिष्क, 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 am I audible? तनिष्क, कभी कभार इसमें प्रॉब्लम है। no issues. Now I was explaining you about the stomata. Okay, so just I show you the picture of the stomata over here. Like every surface of the green, every surface of the every leaf, each and every leaf, they are going to have the stomata on their surfaces. Like over here, it has shown. Now this particular, if you look over here, it is called as the stomata in this case. ओके Okay, this is your stomata over here. Now if you are going to look the opening and closing of the stomata, this is the opened stomata over here and this is the closed stomata over here. जितने भी stomata होते हैं, they are covered by the guard cells. Basically जो guard cells होते हैं, उनका function क्या होता है कि वो control करते हैं opening and the closing of the stomata. Now how they are going to control the opening and the closing of the stomata, कि जब भी आपके गार्ड सेल में पानी का फ्लो होगा, देयर विल बी द फ्लो ऑफ द वाटर, तो वो स्वेल हो जाते हैं एंड आफ्टर स्वेलिंग दे बिकम कर्व्ड. लाइक अगर आप यहाँ पे देखो ये पिक्चर, तो देयर शेप हैव बिकम द कर्व्ड ओवर हियर. सो दे बिकम अ कर्व्ड, और जब वो कर्व्ड हो जाते हैं तो आपका स्टोमाटा जो है वो ओपन हो गया. एंड वेन एवर देयर इज नो फ्लो ऑफ द वाटर इनसाइड द सेल, तो दे बिकम द स्ट्रेट एंड दे बिकम द क्लोज्ड. गॉट इट? ओके मैम। अब इसके थ्रू क्या है, दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट रेगुलेट्स द exchange of the gases. Exchange of the gases means what? They are going to they are going to evolve the oxygen gas and going to intake the carbon dioxide gas. This is how. मैम हाँ बेटा. जब क्लोज होता है स्टोमेटा तब ऐसा होता है। ये सेकंड डायग्राम जो है, दिस your guard cells has become straight. नहीं नहीं, आई एम आस्किंग दैट व्हेनेवर स्टोमेटा इज क्लोज्ड इट इनटेक्स ऑक्सीजन एंड रेगुलेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, उस टाइम में कोई भी उसके अंदर वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है. तो नहीं, आप ये बताओ, देखो प्लांट्स तो अपने को ऑक्सीजन देते हैं एंड दे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने अभी उल्टा बताया था, वो किस कंडीशन में? मैंने आपको ये बोला था कि जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती है, तो उस टाइम में क्या हो जाता है कि उसके जो स्टोमेटल्स जो होते हैं, पोर्स जो होते हैं, दे रिमेन द क्लोज्ड. ओके ओके। ओके, उस टाइम में उसकी जो मतलब पोर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, दे रिमेन्स क्लोज्ड. गॉट इट नाउ? यस मैम। बेसिकली आप ये कह लो कि जितना भी गैसियस एक्सचेंज जो है प्लांट्स में, ऑल एवरीथिंग टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा इन द लीव्स. ओके, जितना भी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस है, दैट ऑल टेक्स प्लेस इन द थ्रू द पोर्स ओनली, दिस स्टोमाटा ओनली. अब समझ में आ गई आपको ये बात? यस मैम। ओके, नाउ और अगर मैम उसकी अगर सिर्फ रूट्स में पानी दें तो फिर उसके ऊपर तो पानी आता ही नहीं, तो फिर क्यों, वो आपने ओपन। पढ़ा नहीं है कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हाँ, वाटर एंड द मिनरल्स? फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है? so मैम ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन ओनली इट कुड हैपन, है ना? नहीं, आप जब प्लांट रूट्स में पानी दे रहे हो, आपने कभी ऐसे देखा है कि आप सिर्फ पत्ते पे पानी दे रहे हो? पत्ते पे थोड़ी देते हैं। फिर तो फिर हाउ इट इज पॉसिबल दैट आप रूट्स में पानी डाल रहे हो और लीव्स तक ना पहुंचे?
हाउ इट इज पॉसिबल, बताओ ना. When you are plant watering a plant, it means that it is going to transport to your whole plant. Now आपके क्वेश्चन पे मैं आ रही हूँ कि प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है फॉर द photosynthesis. Now what happens that whatever the water is required by the plants for photosynthesis, it is absorbed by the रूट्स. roots. Yes, whatever the water is required by the plant, it is absorbed by the roots only. Now how the roots are going to absorb the plant the water? They are going to absorb the water from the soil only, and the process of this absorbing the water from the roots from soil, this process is going to called as the osmosis. Now what happens कि जो भी आपका पानी absorb हुआ by the roots से, वो क्या होगा, that is transferred, or you can say it is transported to the upward direction. और ये transport होता है through the xylem vessels. ये xylem vessels जो हैं, ये water को लेके जाती हैं to the leaves, जहाँ पे पानी जाने के बाद it reaches to the photosynthetic cells and it is utilized in the photosynthesis. In this manner आपके जो दो raw materials हैं, that is your carbon dioxide and the water, they help to prepare the food for the plant, जिसको आप carbohydrates बोलते हो, like your glucose or starch. अब इन दो raw materials के अलावा your plant also require these certain more raw materials. वो raw materials क्या हो गए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम. अब ये जो बाकी की मटेरियल्स हैं which our plant requires, we supply them from the outside. Okay, like हम कुछ supplements डालते हैं, तो वो हम ये वाले जो raw materials जैसे हैं, जैसे नाइट्रोजन को अगर लाने तो नाइट्रोजन भी लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा दोगे आप, तो हम क्या करते हैं, लाइक जो आप सोशल में पढ़ते हो, दैट द फार्मर्स फॉलो द प्रोसेस ऑफ द क्रॉप रोटेशन, के एक सीजन में दे आर गोइंग टू प्लांट द लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस हाँ. प्लांट्स क्या करते हैं, दैट बाय द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे just trap the nitrogen and make the your soil rich in the nitrogen, and फिर next season में क्या कर लेते हैं, वो non leguminous plants बना लेते हैं. So in this way we are going to supply all the raw materials to the plant for the growth. मैम कौन कौन से होते हैं नॉन लेग्यूमिनस, थोड़ा एग्जांपल. नॉन लेग्यूमिनस तो जैसे नहीं आलू. लेग्यूमिनस. मैम लेग्यूमिनस तो लेग्यूमिनस. बेटा जितनी भी बीन्स हो गई वो लेग्यूमिनस हो गई ना. अच्छा. ठीक है. छोटी क्लासों में अपन पढ़ते हैं ना लेग्यूम्स, तो जितनी भी आपकी बीन्स हो गई वो दे ऑल आर द लेग्यूम्स. ओके. ओके. नाउ another thing, next topic over here comes your site of the photosynthesis. Now site of the photosynthesis, that is your क्लोरोप्लास्ट. ओके. अब क्लोरोप्लास्ट जो है ये ऑर्गेनेली है विच इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स. नाउ दिस क्लोरोप्लास्ट जो हम ये कह रहे हैं कि ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर है, इट कंटेन्स अ क्लोरोफिल, और जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो होता है. नाउ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ऑर्गेनेलिस विच इज कॉल्ड एज द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है इन द फोटोसिंथेटिक सेल. फोटोसिंथेटिक सेल को हम लोग मेसोफिल सेल्स भी बोलते हैं. ओके. अब हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है उस जगह का नाम है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है आप बहुत इजीली यू कैन लुक विद द हेल्प ऑफ द
माइक्रोस्कोप। ओके, जब आप अपना कोई लीफ लेते हो, लीफ का क्रॉस सेक्शन करते हो, तो यू कैन वेरी इजीली लुक द योर क्लोरोप्लास्ट ओवर देयर इन योर सेल। इतना बस आपको इसमें पता होना चाहिए। आई जस्ट शो यू द क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कि क्लोरोप्लास्ट होता कैसा है। हम टोमेटो भी देख सकते हैं क्या किसी नॉर्मल माइक्रो? इसमें ना क्रॉस सेक्शन करते हैं तनिष बेटा लीफ का, एंड यस वी कैन लुक, हमने देखा हुआ है, लाइक व्हेन आई वाज द स्टूडेंट आवर टीचर शोड अस। ओके। दिस इज योर हाउ द क्लोरोप्लास्ट लुक। आई जस्ट शो हाँ। यू द एग्जैक्ट पिक्चर। ये आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे, वो लाइक दे वर द एनिमेटेड वर्जन, जैसे आप बोलते हो उस टाइप का कुछ कहोगे आप उसे, लाइक दिस वन, कि उन्होंने ये बना रखा है। बट द एग्जैक्टली विच यू आर गोइंग टू लुक इन द दैट, कहाँ गया, एग्जैक्टली जो है कुछ इस टाइप का दिखता है वो, कि जैसे यूँ समझो कि ईंटे ईंटे से दिखता है वो। ओवर हियर इट इज नॉट कमिंग बेटा। ये आपको पिक्चर क्लियर है ये वाली? हाँ। इस टाइप का दिखता है एग्जैक्टली अगर आप लीफ को अंडर अ माइक्रोस्कोप रखोगे तो वो इस टाइप का दिखता है। एंड इवन लाइक आपके स्कूल में देयर शुड बी अ, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्रीपेड स्लाइड्स भी आती हैं, टीचर्स के पास होती हैं। वो तो मैम करवा रखा है हमको। हाँ, कुछ जैसे मिनी। होते हैं कि आप खुद भी बना सकते हो और कुछ हैं कि आप सिर्फ स्टूडेंट्स को दिखा सकते हो। ओके, सो somewhat it is look like exactly वो यही दिखता है जब you are going to look in the microscope। ओके। एंड मैम क्रॉस सेक्शन क्या बता रही थी आप? क्रॉस सेक्शन मतलब होता है कि आप ऐसा थोड़ी करोगे कि आप प्लांट से लीफ तोड़ोगे और उसको तोड़ के और उसके नीचे रख दोगे मैं तो यही करता हूँ। माइक्रोस्कोप के नीचे। नो, क्रॉस सेक्शन मींस कि आप उसको डाइसेक्ट करते हो। लाइक जब आप ओनियन सेल है तो आप ऐसा थोड़ी करते हो, आपको ओनियन सेल देखना है तो लेके पूरा ओनियन रख देते हो, उसके ऊपर से एक कवर ओके। निकालते हो, एंड दैट कवर यू आर गोइंग टू पुट। सिमिलरली लीव्स के अंदर भी, लाइक हम लोग जब हमें ये देखना होता है कि वेदर योर लाइक सेल्स देखने होते हैं कुछ, आप इन द सीनियर क्लासेस यू विल रीड इट कि आपको सेल्स देखने इन द लीफ, तो आप उसके ऊपर से बहुत छोटी सी लेयर ऑफ द एक ट्रांसपेरेंट शीट ओके। निकलती है, वो आप निकालते हो, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज द क्रॉस सेक्शन। आप डायरेक्टली लेके उसको प्लेस नहीं करते हो। ओके, ओके। नाउ ओके। ये आपका हो गया टॉपिक फॉर द न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। नाउ वी हैव द न्यूट्रिशन इन animals. Now, when we are going to talk about the nutrition in the animals, in the case of the nutrition in the animals, we say we say that animals obtain their food from the plants or other animals. अब जितने भी आपके एनिमल्स हो गए, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दे ऑल डिपेंड ऑन द रेडीमेड फूड। नाउ रेडीमेड फूड जो है वो कहाँ से मिल रहा है? या तो वो आपको प्लांट से मिल रहा है, या फिर आपको वो दूसरे एनिमल्स से मिल रहा है, जितना भी रेडीमेड food है। Now, even in this category, we count the human beings also. Like, we obtain the food from the wheat, rice, pulses, fruits, vegetables. ये सब चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं हमें? प्लांट से मिल रही हैं। या फिर आप मिल्क ले रहे हो, कर्ड ले रहे हो, चीज़ ले रहे हो, एग्स ले रहे हो,
ये सब कहाँ से आ रहे हैं? दे ऑल थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द एनिमल्स. सो वी से दैट जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग द either they are depending on the plants or they are depending on the animals, or some of the animals even depend on the flesh of other animals. जैसे कि हाँ अगर मैं ये बोलूं कि आपकी जो बड़ी फिशेस हो गई वो छोटी फिशेस को खाती हैं, बर्ड्स हो गई वो वर्म्स खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, स्नेक्स फ्रॉग्स खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स खाते हैं. तो it means what is happening, that we all are dependent on each other. Like कल आप मुझसे Venus fly trap बोल रहे थे. Similarly we have the pitcher plant also. ये दोनों किस कैटेगरी में आ जाते हैं? दे आर द प्लांट्स विच ईट द इंसेक्ट्स. मीन्स अंडर दिस कैटेगरी आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स भी आते हैं. क्यों? बिकॉज योर नॉन ग्रीन प्लांट इज वॉट डूइंग, इट इज ऑल्सो नॉट प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड. वो भी अपने फूड के लिए इट इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर वन. क्लियर? तो मैम वो जो वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे प्लांट है वो मतलब उनको जब तक ऐसे टाइप का कोई खाना नहीं मिलता है इंसेक्ट तो तब तक ही उनकी लाइफ रहती है, मतलब जब तक मिल रहा है तब तक जिंदा है? क्यों नहीं मिलेगा बेटा खाना? नहीं अगर जैसे कोई, मैम मेरा पूछने का आपसे मतलब है देखो कि मैं एक अगर चीज बताऊं तनिष्क, लाइक आप से सपोज मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. हम अपनी डे टू डे लाइफ में, रूटीन लाइफ में भी से बर्ड्स हो गई, पिजन्स हो गई या डॉग्स हो गए, बहुत कॉमन है डॉग्स का एग्जांपल. अब ऐसा तो होता नहीं कि जो उनके पपीज होते हैं वो मर जाते हैं. अच्छा अच्छा। एनी ऑफ द वे दे आर गोइंग टू गेट द फूड, हाँ चाहे उनके पेरेंट्स उनको फीड अप करें या ना करें. ओके। ओके. नाउ सिमिलरली वीनस ट्रैप प्लांट और पिक्चर प्लांट है, वैसा तो नहीं है ना कि इनको बड़ा इंसेक्ट ही चाहिए, छोटा सा इंसेक्ट भी जाएगा तो इट विल बी देयर. एंड द प्लांट्स जो हैं, अगर आप अपने घर में भी आप प्लांट्स लगाते हो तो वहां पे और कुछ नहीं तो चींटियां तो आ ही जाती हैं. इजंट इट? यस मैम। तो दैट इज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल दैट दे आर नॉट गोइंग टू गेट द फूड. नाउ एनिमल्स जो हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, या फिर आप कह सकते हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स पे. सो दैट क्लास इज व्हाट, दैट इज योर herbivores, carnivores and omnivores. अब herbivores वो हो गए the animals which eat the only and only plants, means they are completely dependent on the plants. Carnivorous वो हो गए which eats only the animals, and omnivorous वो हो गए जो plants as well as the animals दोनों पे ही dependent होते हैं, like your human beings. Okay, they are going to eat the plants also and they are going to eat the animals also. Now we have the different जो main thing आ जाती है, ये तो आपने छोटी classes में भी पढ़ रखा है, that is your different steps in the process of nutrition in animals. अगर कोई भी एनिमल जो है वो कुछ खा रहा है तो उसके पास न्यूट्रिशन कैसे पहुंच रहा है? प्लांट्स के केस में इट वाज वेरी सिंपल. प्लांट्स के केस में क्या सिंपल था कि आपके पास सिर्फ रॉ मटेरियल आ रहा था एंड प्लांट्स वर सिंथेसाइजिंग द फूड एंड दे वर मेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन इन द केस ऑफ द एनिमल्स इट इज नॉट सो सिंपल. यहाँ पे द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, इट इज द इंजेशन. इंजेशन का मतलब क्या होता है कि आप खाने को जो है वो ले रहे हो, इंजेस्ट कर रहे हो, आप उसे खा रहे हो. ईटिंग ऑफ द फूड इज कॉल्ड एज द इंजेशन. द सेकेंड स्टेप इज योर डाइजेशन. अब डाइजेशन का मतलब क्या हो गया, दैट द फूड जो भी आपने लिया है वो क्या हो गया,
फूड जो भी आपने लिया है उसको डाइजेस्ट होने के लिए क्या होगा, जो आपका लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो थे आपके फूड में, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कट टूटेंगे, और उनको टूटने के बाद वो आपकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करेगी। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डाइजेशन। ओके, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज गोइंग टू कॉल्ड एज द डाइजेशन। आफ्टर दैट योर थर्ड प्रोसेस कम्स द एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन। अच्छा। ओवर हियर, यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड हुआ। ब्रेकिंग डाउन, यहाँ पे आपने खाना खाया, जो आपने खाना खाया उसके लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हुए, और यहाँ पे इट हैज़ स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग। ओके, जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड था वो पास हुआ थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि अल्टीमेटली योर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इनटू द blood stream. And then at the fourth step you have the assimilation. एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका खाना एब्जॉर्ब हुआ वो आपकी बॉडी सेल्स ने लिया और उसको फिर यूज किया फॉर द एनर्जी, फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयर। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज गोइंग टू कॉल्ड एज द एसिमिलेशन। आफ्टर दैट द फिफ्थ स्टेप कम्स, दैट इज योर मैम एब्जॉर्प्शन में भी तो यही हो रहा है एसिमिलेशन का, कि एब्जॉर्प्शन में भी नहीं, इट इज नहीं, एब्जॉर्बिंग ऑल द नो, मिनरल्स विटामिन। नो। एब्जॉर्प्शन के अंदर जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में गया है, अच्छा। और एसिमिलेशन में जो आपका एब्जॉर्ब्ड फूड आपके बॉडी सेल्स ने ले लिया था वो एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूटिलाइज हो रहा है। देयर इज अ ओके। डिफरेंस। ओके, इजेशन। इजेशन क्या हो गया कि जितना भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल था जो आपका बचा, इट इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो ये बेसिक 5 स्टेप्स जो हैं दे आर गोइंग टू टेक प्लेस इन अ एनिमल। नाउ आपके जो एनिमल्स हो गए लाइक योर अमीबा एंड योर पैरामीशियम, अगर मैं बोलूँ तो दे आर द सिंपल एनिमल्स, इजंट इट, जिनको आप यूनिसेलुलर एनिमल्स बोलते हो। तो इवन इन हाँ। द यूनिसेलुलर और एनिमल्स आल्सो, जो ये प्रोसेस था न्यूट्रिशन का, इट इज आल्सो गोइंग टू परफॉर्म। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस जो है सिर्फ मल्टी सेलुलर एनिमल्स में होगा, इट इज गोइंग टू अकर टेक्स प्लेस इन द योर यूनिसेलुलर आल्सो। लाइक जो अमीबा हो गया, अमीबा पहले इंजेस्ट करता है फूड को विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया। सीडोपोडिया। ओके, अब इंजेस्ट करने के बाद क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। डाइजेशन के लिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इन द केस ऑफ द अमीबा डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल, एंड देन एब्जॉर्प्शन होगा फूड वैक्यूल से। अब एब्जॉर्प्शन किस में होगा, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा सेल, एंड देन आफ्टर दैट एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन क्यों कैसे होगा, टू ऑब्टेन द एनर्जी, and then ultimately the egestion takes place. Okay, egestion। मैम ये अमीबा और पैरामीशियम जैसे, ये इनको ऑर्गेनिज्म मतलब किस में कंसिस्ट करेंगे, इंसेक्ट्स में? नहीं, किसने कह दिया इंसेक्ट्स, दे आर द यूनिसेलुलर एनिमल्स। हमारे पास दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, दैट कहाँ इज, मिलते हैं मैम ये? हाँ, कहाँ मिलते हैं, मतलब कहाँ पर ये ग्रो करते हैं? कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये आपकी बॉडी में कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं या बाहर कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। दे आर बेसिकली द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मैम लैब्स में होता है क्या? आपके लैब में स्लाइड होगी अमीबा और उसकी, अच्छा। देयर मस्ट बी द स्लाइड। वही तो मैं एंड आपको, मैम अमीबा इज कलरलेस? जो स्लाइड होती है दे आर, जो स्लाइड होती है ना, आप कभी भी कोई भी स्लाइड आप देखते हो तो उसके ऊपर हम स्ट्रेन लगाते हैं, स्ट्रेन लगाते हैं क्यों, ताकि हम उसको देख सकें। अब एग्जैक्टली नहीं, वो एक्चुअली में क्या होता है? कलर, उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कलरलेस होता है।
ओके ओके। इरेगुलर शेप होती है उसकी। एंड मैम जो आपने मेरे को क्लोरोप्लास्ट बताया था, ऐसे दो और होते हैं ना, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तो और उनका भी ल्यूकोप्लास्ट बता होते दो। हैं। क्रोमो तो होता है जो फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द लीव्स। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। ओके। क्रोमोप्लास्ट जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द फ्लावर्स, तो वो वेरिएबल कलर्स देता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है? रूट जो है आपकी कलरलेस तो नहीं बोलेंगे, वाइटिश कलर की होती है रूट। अगर आप उनको वाइट निकालो सॉइल या से, फिर ब्राउन? ड्राई करो, नहीं अगर आप उनको निकालो सॉइल से ड्राई करो तो समवॉट दे विल लुक द वाइटिश। प्योर वाइट नहीं कहते हम उन्हें, मिक्स रहता है। ओके। ब्राउन उनका कलर होता है क्योंकि वो मिट्टी में रहते हैं। अच्छा। और बोलो, एनी अदर डाउट? नो मैम। ओके। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द अमीबा, तो जो आपके यूनिसेल्युलर एनिमल्स हो गए लाइक योर अमीबा और योर पैरामीशियम, इनके अंदर भी all the process are going to take place which are taking place in the multicellular organisms. multicellular organisms के अंदर आपके humans भी आ जाते हैं, fishes, frogs, ये सब आपके multicellular organisms में हैं। and ये जो process involve करते हैं in the nutrition, ये होता है by the combination of digestive organs इन द मल्टीसेलुलर ओके। ऑर्गेनिजम्स में। मीन्स कि जो भी आपका प्रोसेस होगा वो माउथ टू एनस जो है वो काउंट किया जाएगा, जिसके अंदर आपका डाइजेशन भी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को वी ऑल्सो कॉल्ड एज द गट, GUT गट। गट। यस, इसको आप गट भी बोलते हो। ओके okay? ओके तनिष्क, यस मैम। अब आप ये बताओ, अब आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्टार्ट करूं मैं, या यू विल जस्ट रीड अबाउट दिस? स्टार्ट कर लो ह्यूमन डाइजेस्ट। स्टार्ट कर दूं मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? क्या मतलब? ओके फाइन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो गया, इट फॉलोज अ सर्टेन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या हो गई? हम सबसे माउथ, पहले माउथ, देन ओसोफेगस, देन ईसोफेगस बोलते हैं, स्टमक। ओसोफेगस नहीं बोलते। अच्छा, ईसोफेगस। Yes, O is silent. Esophagus. Esophagus ओके को ओके। we also called as the food pipe. फूड पाइप, राइट, और ट्रैकिया। ट्रैकिया नहीं बोलते यार, तो वो ट्रैकिया नहीं बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। आपके वो होते हैं ना, मतलब ये मैं एक बार कंफर्म कर दूंगी, बट आई एम वेरी श्योर कि वी डू नॉट कॉल इट एज अ ट्रैकिया, बिकॉज यू हैव द टू पाइप्स ओवर हियर। एक होता है हाँ आपका हाँ। एसोफेगस जिसे आप विंड फूड पाइप पाइप एंड बोल वन रहे हो, फूड पाइप। एंड अनदर वन इज अ विंड पाइप। तो उस वाले केस में वी कॉल्ड इट एज अ ट्रैकिया विच आई रिमेम्बर। ओके ओके, देन मैम स्टमक। स्मॉल intestine, अच्छा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा अच्छा, stomach सॉरी सॉरी। not small intestine, सॉरी। हाँ। large intestine। अच्छा मैम, लिवर का कोई रोल नहीं होता ना डाइजेशन में? जो आपका लिवर है वो इट इज अ ग्लैंड जो एसोसिएटेड है विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, दीज आर द ऑर्गन्स। लिवर इज नॉट अ ऑर्गन, इट इज अ ग्लैंड। These are the organs of the digestive system. Now we are going to talk with the glands which are associated with the digestive system. तो मतलब
दे आर गोइंग टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ इट. आप उसके बिना डाइजेशन कर भी नहीं सकते हो, बट दे आर काउंटिंग एज द ग्लैंड्स. सो व्हाट आर दे? एंड मैम पैनक्रियाज. दे दैट इज आल्सो ग्लैंड. salivary gland, हाँ हाँ, पैनक्रियाटिक ग्लैंड. liver and pancreas. Okay, this. Now आपको ये पता होना चाहिए that in the human beings your alimentary canal is कितनी बड़ी है? 2.5 मीटर, 6.5. 9 meters. 9 मीटर. ओके. और जो आपके वेरियस ग्लैंड्स जो हैं, उनकी जो डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स मतलब जो उनकी ओपनिंग होती है, दैट इज फॉलिंग अंडर द एलिमेंट्री कैनाल. अगर ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है और आपका कोई ग्लैंड है तो उसकी ओपनिंग्स ऐसे होंगी. गॉट इट? यस. they are going to pour their secretions of the digestive juices and everything in this alimentary canal over here. अब यहाँ पे भी your first step is going to be the ingestion. Okay, now we say the human beings have the special organ for the ingestion of the food, और वो special organ है mouth. Clear? The second step in the human beings is the digestion. जैसे आप अपना खाना अपने मुंह में डालते हो, उस खाने का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. और डाइजेशन कैसे होता है? दैट यू हैव टेकन द फूड इनटू अ माउथ कैविटी, जिसको वी आल्सो कॉल्ड एज द बकल कैविटी. उसके अंदर आपके पास टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स है. अब टीथ का काम क्या हो गया? दे आर गोइंग टू कट द फूड आइटम्स, जो भी आपने खाना खाया है, इनटू द स्मॉल पीसेस. उसको च्यू करेंगे, उसको ग्राउंड करेंगे. मीन्स कि जो टीथ हैं वो हेल्प कर रहे हैं इन द फिजिकल डाइजेशन. देन सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं हमारे माउथ में, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सलाइवा. जो टंग है वो हेल्प कर रही है इन मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड. सलाइवा इज व्हाट? इट इज़ अ वाटरी लिक्विड. तो वाटरी लिक्विड होने के कारण वो क्या करता है? आपके खाने को वो गीला करता है. गीला करने से क्या हो जाता है? इट टेक्स अ इट्स बिकम अ वेट. और वेटेड फूड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ द बोलस. बोलस इसलिए बोलते हैं कि बॉल टाइप शेप का हो जाता है, एंड इट बिकम्स इजी टू swallow it. नाउ योर सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इन द केमिकल डाइजेशन. कैसे? बिकॉज दे कैन सिक्रीट द एंजाइम्स. जो ह्यूमन सलाइवा है उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द सलाइवरी amylase. दे आर कॉल्ड एज द सलाइवरी amylase. और सुन रहे हो आप? यस मैम. सलाइवरी एमाइलेज जो है ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड. मैम ये एमाइलिस है या फिर एनाइलिस? एमाइलेज, AMY. It helps in the digestion of the starch present in the food into the sugar. ओके. Okay. अब your homework is to read up to here, और मैं आपको वो वाला टेस्ट भी भेज देती हूँ. So just to do that, solve that and send me WhatsApp. ओके मैम, अभी तो मेरी स्कूल की क्लास होगी अभी 12 to 5. अभी का मतलब मुझे रात तक भेज देना, कल सुबह इस क्लास से पहले भेज देना. इतना ठीक है, टाइम ठीक. है आपके पास. ओके. ओके मैम. ओके देन बेटा, बाय. ओके बाय.